Hello everyone, welcome to my channel Bani's Biology. Today we will learn about the eukaryotic DNA replication. Eukaryotic DNA replication is more complex rather than the prokaryotic DNA replication. So why? Because of the eukaryotic genome is larger and packaged into chromatin. This is the prokaryotic genome and this is the eukaryotic genome. In eukaryotic organism, just like human chromosome 23 pairs of chromosome present. एंड ईच क्रोमोसोम को जूम करके देखे तो दिस इज द क्रोमोसोम, इसको जूम करके देखे तो बहुत सारी क्रोमाटिन लेके क्रोमोसोम बनती है। एंड क्रोमोसोम को जूम करके देखे तो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो रैप अराउंड द nucleosome that is called histone protein. So DNA, this is the DNA and DNA is wrapped around the histone protein called nucleosome. That's why eukaryotic DNA replication is much more complicated than the prokaryotic DNA replication. In prokaryotes space, single origin of replication site present, that is called ORIC, but in eukaryotes space, multiple origin of replication site present, that is called ORI. So eukaryotes पे multiple origin of replication site present, तो कैसे recognize होगी कौन सी साइट? ORI साइट. Mostly eukaryotes पे ORI साइट is 80 region and replication जो start होगी mostly nucleosome 3 region and open chromatin region. But the prokaryotes and eukaryotes पे basic mechanism जो है replication का वो है similar. Just like ORI site recognition होगा, then initiator आके bind होगा, helicase load होगा, यहाँ पर भी helicase load हुई है. ऐसे mechanism is similar and the enzyme function also similar. But the enzyme names are different organism is different. So let's talk about the common enzymes in prokaryotes and eukaryotes. That is primase. In prokaryotes पे DNA G, but its function is similar. But in lower यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पे इसको बोलते हैं प्राइमेज एंड ह्यूमन पे प्राइमेज। ये क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। डीएनए हेलिकेज जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स पे डीएनए बी एंड यूकैरियोट्स पे MCM27, ह्यूमन पे भी MCM27 दैट अनवाइंड द डीएनए जो है एसएसबी, दैट इन प्रोकैरियोट्स पे भी एसएसबी बट इन यूकैरियोट्स पे आरपीए एंड ह्यूमन आल्सो आरपीए। दैट्स फंक्शन क्या है? बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करेगी एंड स्टेबलाइज फॉर्म करेगी। एंड टोपो आइसोमरेज जो है प्रोकैरियोट पे टोपो 1 एंड गाइडेज and eukaryote पे topo 1 and 2 and human also topo 1 and 2 जो क्या करेगी? relieve the supercoiling. So let's talk about the enzyme that are involved in the eukaryotic DNA replication. First is the ORC, that is called origin recognition complex, that recognize the replication site ORI site and the functionally analog to the DNA A protein जो क्या करती है? bind होते हैं DNA ORI site पे and recruit the other enzymes that are involved in DNA replication. And CDC6 जिसको बोलते हैं cell division cycle, that is helicase loading protein, and CDT1 that also helicase loading protein. And here is the helicase protein is the MCM27 helicase that unwind the DNA, and CDC6 and CDT1 that loaded the MCM27 helicase. जो MCM क्या बोलते हैं? एमिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन जो है 2 to 7 and MCM27 helicase that is equivalent to bacterial जो DNA B helicase protein present. Then is a CDK cyclin dependent kinase and DDK DBF4 dependent kinase. CDK and DDK that target the helicase protein and phosphorylate it and that help in MCM helicase activation. And next is the RPA protein जो बोलते हैं replication protein A that equivalent to function of ESSB protein that help in the strand stabilization. जो single strand पे RPA protein bind होता है and DNA and binding protein को stabilize form करते हैं and prevent from coiling. जो twist होता है ना वो twist को prevent करती है. RFC replication factor C is a clamp loader for PCNA. PCNA is a clamp जिसको लोड करते हैं RAP. Then PCANA proliferating cell nuclear antigen that greatly enhance the processivity of the polymerase. जो polymerase function करती है DNA elongation पे, जो replication elongation पे उसको enhance करती है. Next is a PCNA that help in the polymerase processivity. And here is the some eukaryotic DNA polymerase enzyme. Eukaryotic polymerase alpha that is primer synthesis जिसको बोलते हैं polymerase alpha जो है primase जो help करती है क्या? प्राइमर सिंथेसिस पे. पॉलीमरेज बीटा जो हेल्प करते हैं बेस एक्सेशन रिपेयर, जो हेल्प डीएनए रेप्लिकेशन पे हेल्प नहीं करती है बट बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म पे हेल्प करती है. पॉलीमरेज गामा जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन पे हेल्प करती है. पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो है लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस होता है. जो डीएनए जो सिंथेसिस होते हैं वो एक है लैगिंग स्ट्रैंड और एक है लीडिंग स्ट्रैंड, एक है कंटीन्यूअस और एक है डिसकंटीन्यूअस. वो जो डिसकंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस होते हैं, एक है पॉलीमरेज डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस करती है और एक पॉलीमरेज
पॉलीमरेज ईटा जो है लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस करती है एंड पॉलीमरेज थीटा जो है वो क्या करते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म पे हेल्प करती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन प्रोसेस। कैसे इनिशिएशन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होते हैं वो है ओआरआई साइट। ओआरआई साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओआरसी दैट इज ए 6 सब यूनिट कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट बाइंड होते हैं डीएनए पे एंड ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट हेल्प इन द origin recognition and recruit the other initiation factor। ORC1 वो क्या करते हैं बाइंड एटीपी एंड इनिशिएट डीएनए बाइंडिंग। वो डीएनए बाइंडिंग पे हेल्प करते हैं एंड हैज एटीपीज एक्टिविटी। एंड ORC2 to 5 जो है वो है स्ट्रक्चरल कोल, स्ट्रक्चर के साथ बाइंड फॉर्म होगी एंड स्टेबलाइज करेगी। ORC6 क्या करेगी मेंटेन प्री आरसी। प्री आरसी मींस प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जो इंटीग्रेटिव आफ्टर असेंबली। जो ORC1 to 6 बाइंड हो जाएगी तब प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स को रिक्रूट करेगी। That's why ORC is called gatekeeper of the eukaryotic DNA replication। But in eukaryote पे DNA replication जो स्टार्ट होते हैं वो कंट्रोल होते हैं सेल डिविजन पे। एक बार जो सेल साइकिल होगी वो एक बार ही डीएनए सिंथेसिस होगी। इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इज रेगुलेटेड बाय सेल साइकिल। कैसे रेगुलेट करती है। सेल साइकिल पे सीडीके प्रेजेंट जो है साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज जो लो एंड हाई फेज पे हेलिकेज लोडिंग एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन डिटरमाइन करती है। हियर इज द सेल साइकिल जो है G1, AS, G2 एंड M फेज। G1 फेज पे हेलिकेज लोड होते हैं बिकॉज ऑफ द सीडीके लेवल लो, बट इन AS फेज पे सीडीके लेवल हाई हो जाता है। तब क्या होता है एक्टिवेशन फेज स्टार्ट होती है बट नो हेलिकेज लोड होती है। सो हेलिकेज लोडिंग इज डिपेंड अपॉन द सीडीके लेवल लो एंड सीडीके लेवल हाई। बट इन G2 एंड M फेज पे ORC रिकॉग्नाइज करेगी ORI साइड बट उस टाइम पे कोई भी हेलिकेज लोड नहीं होगी। ओनली G1 फेज पे हेलिकेज लोड होगी जब सीडीके लेवल लो होगी। सो हियर इज द हेलिकेज लोडिंग एक्टिवेशन एंड देयर रेगुलेशन एंड हेलिकेज लोडिंग एक्टिवेशन आर रेगुलेटेड टू अलाउ ओनली सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। तो ईच जो साइकिल सेल साइकिल होते हैं सेल साइकिल पे एक बारी रेप्लिकेशन होगी वो रेगुलेटेड बाय द हेलिकेज लोडिंग एक्टिवेशन एंड रेगुलेशन। सो G1 फेज जहां पे हेलिकेज लोड होते हैं क्योंकि सीडीके लेवल लो, यहाँ पे सीडीके लेवल लो G1 फेज पे। बट AS, G2 एंड M फेज पे वो क्या करती है हेलिकेज कोई भी लोड नहीं होते ओनली एक्टिवेशन होती है क्योंकि सीडीके एंड डीडीके हेल्प करती है हेलिकेज पे फॉस्फोराइलेट करेगी एंड एक्टिवेशन स्टार्ट होगी। सो नेक्स्ट कैसे इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर A है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स असेंबली जहां पर ऑल रेप्लिकेशन इनिशिएशन प्रोसेस यहाँ पर असेंबली होगी एंड देन स्टार्टेड होगी रेप्लिकेशन पे। फर्स्ट ORI साइट ORC रिकॉग्नाइजेशन करेगी एंड एटीपी थ्रू पे एंड देन CDC6 जो एटीपी लेके ORC साइट पे बाइंड होगी। देन CDT1 जो है हेलिकेज लोडर वो क्या करेगी MCM27 जो हेलिकेज लोडर उसको लेके जाके ORC साइट पे बाइंड होगी। सो देन CDT1 एंड CDC6 रिलीज हो जाएगी। रिलीज हो जाने के बाद देन हेलिकेज एक्टिवेशन स्टार्ट होगी। एक बार हेलिकेज एक्टिवेशन कैसे स्टार्ट होगी यहाँ पर है CDK एंड DDK जो क्या करेगी फॉस्फोराइलेट करेगी एंड रिक्रूट करेगी SLD2, SLD3 एंड DPB11 जो हेल्प करेगी हेलिकेज एक्टिवेशन एंड DNA unwinding process and that is called pre-replicative complex assembly। Here is the summarized process overall जहाँ पर हाई CDK स्टेट जहाँ पर ORC आके कॉम्प्लेक्स आके बाइंड होगी बट कोई भी हेलिकेज लोडेड नहीं होगी। तो देन लो CDK लेवल जहाँ पर है G1 फेज पे लो CDK स्टेट एंड MCM हेलिकेज लोडिंग स्टार्ट होगी एंड देन CDC6 CDT1 जो क्या करेगी MCM हेलिकेज लोडिंग हेल्प करेगी जो हेलिकेज लोडर। तो देन एस फेज पे CDK एंड DDK क्या करेगी फॉस्फोराइलेट करेगी। फॉस्फोराइलेट करने के बाद क्या होगी CDC6 CDT1 रिलीज हो जाएगी एंड हेलिकेज क्या करेगी एक्टिवेशन हो जाएगी एंड DNA अनवाइंड करेगी। देन पॉलीमरेज लोड हो जाएगी एंड DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तब क्या होगी हाई CDK स्टेट जो है एस फेज। हियर इज द समराइजेशन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स इनिशिएशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स असेंबली।